हमारे दो अजीज मित्र, हमारे मित्र जो सब हैं, आज राजस्थान के लिए हम इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा नाम, मैं थोड़ा सा शायद भावुक भी हो रहा हूँ क्योंकि दो मेरे खास मित्र, हमारे मित्रों का समूह आज यहाँ राजस्थान में इस लेवल पे आया है कि हम आज इतना बड़ा ब्रांड राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए और राजस्थान के लिए लेके आ रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आशा करूंगा कि आप So now, Mr. Mihir Diwakar sir, MD of Arca Sports and member of India under-19 winning World Cup, and former Ranji captain of Jharkhand State, and one and childhood fan of MS Dhoni. जोरदार ताली हो जाए, come on everybody. And now, RP, Rudra Pratap Singh, former Indian international cricketer and part of 2017 T20 World Cup. मैं चाहूँगा कि फिर से जोरदार ताली हो जाए, come on everybody. And now the Daryl Cullinan sir and former South African cricketer. You know everyone from Champion, come on everybody. And now Mr. Fatahjeet Lahiri, BCCI level chief, ECB level third coach and assistant director of coaching, MSDCA and BCCI Ranji panel umpire. Clapping guys, come on everybody. And now Uttam Daga sir, Ajay Bora sir and Mr. Arvind Kolwal sir. दादा सर से मैंने क्रिकेट की कोचिंग भी ली है एंड मैं काफी टाइम से इनको जानता हूं सर को। थैंक यू सो मच। सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इवेंट। सो आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर डागा सर दैट यू कम फॉर द स्पीच। Hello everybody, it's a very delightful moment for me on this stage with great personalities. Mr. Daryl Cullinan, I've seen him playing definitely on TV and I still recognize the face. There's hardly a major change in him and it is a pleasure with all these guys to be on the stage. Let me introduce myself. I am into cricket since my 15 years of age and these 35 years. This has been a long period, but finally I have a feeling that what I wanted to achieve, I'm on the track. That is all I have to say, and all the best to everyone, and thank you so much. Thank you so much, sir. So now let me show Mr. Daryl Cullinan sir that you come for the speech. Good afternoon, everybody. I must first of all say it's a great honour for me to be here. I think to be associated with Arca Sports and Mihir. When you get to the age of 53, you're long forgotten. So I'm very humbled to think that Mihir felt that I had something to offer. And I think on top of that all, to be associated with one of the great names in world cricket in MS Dhoni, someone that I've admired from a distance. I've only had the great privilege to meet once, I hope to meet him more. But as the director of coaching with my assistant coaches, fellow director Dada, it really is a wonderful opportunity to take cricket, not only in India but globally. There's a great need for expert coaching, advice, mentorship in South Africa, but certainly around the world. And I couldn't think of a better opportunity, a better platform than to be involved with the MS Dhoni Cricket Academies. It is certainly my aim. We're still, I think, early days in terms of where we really want to be. Technology is bringing us even more closer to coaches and kids around the world. That we be recognized as the best cricket academy, the most knowledgeable, the most hardworking, and certainly here to make a difference in the lives of all cricketers, all kids of all ages. So thank you very much for being here. I look forward to many years and hope to see you again. Thank you. Okay, come on everybody. Daryl Cullinan sir, ODI debut 1993 versus Pakistan and Test debut 2 Jan 1993 versus India. So now the next off, Mr. Rudra Pratap Singh, RP Singh. Come on everybody, big concert, come on. Thanks for everyone आप सब यहाँ पर हैं. Thanks Darren. I hope you had a comfortable flight from South Africa to India. Thank you Mihir. और थैंक्स MS धोनी क्रिकेट एकेडमी का जो पीछे हमारा मैं कहूँगा बैक ऑफिस जो इसके पीछे काम करता है. मैं हमेशा बात कर रहा था मिहिर से कि
स्ट्रक्चर कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है किसी बच्चे की लाइफ में। मुझे लगता है जब मैं खेलना स्टार्ट किया तो हमारे लाइब्रेरी में एक सीमेंट विकेट था और कोचेस थे ही नहीं। मेरा कोच मैं खुद था और एक हमारा फ्रेंड था, वो हमारा कोच था। सो स्ट्रक्चर कोचिंग अगर वहाँ होती तो शायद जो चीज़ें मैंने 20 साल में सीखी हैं तो शायद 15-16 साल में सीख जाता। और जैसा मेरे से मेरी बात भी हुई है कि एमएसडी क्रिकेट एकेडमी में सर्टिफाइड कोचेस और कोचेस का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं ये भी मानता हूँ साथ में कि स्ट्रक्चर कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैलेंट बच्चा टैलेंट के साथ ही जन्म लेता है। मतलब लगभग 70% या 65% ऑलरेडी टैलेंटेड होता है कि वो उसके पास है, और जो 30% आगे का जो उसकी पॉलिश करना होता है या उस डायमंड को सही से पॉलिश करके निकालना होता है, तो स्ट्रक्चर कोचिंग का ही एक देन कहूँगा मैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है प्लस कोचेस की क्वालिटी भी है। 30% में शायद वो जो पहला वो 70% टैलेंट लेके आया है इस दुनिया में, जो 70 से 80% है वो बेसिक कोचिंग होती है कि आप का पैड सही मूवमेंट होना चाहिए, पास साइड ऑन एक्शन ना हो, आपका सेमी साइड ऑन हो या फिर फ्रंट ऑन हो, ये सारी चीज़ें। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि इतनी सारी अकेडमीज प्लेटफॉर्म बने। मैं भी अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और जयपुर के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। खुद लेजेंड एमएसडी जो इस कोचिंग को पॉलिश करेंगे और इसमें अपना समय देंगे, मेरे साथ में है, क्योंकि जितना मैंने सीखा क्रिकेट स्ट्रक्चर कोचिंग जब मेरे 9th या 10th के बाद में आया तब वहाँ मिली, पर उससे ज़्यादा हमने सीखा इंडिया टीम का पार्ट बन के एमएस और हमारे सीनियर प्लेयर से। तो मैं तो कहूँगा प्लस है जयपुर के बच्चे जो ऐसा प्लेटफॉर्म जयपुर में आया, और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ से भी कोई बल्ला खिलाई निकले और विश्व पटल में विश्व जो क्रिकेट पटल है उसमें अपना इम्पैक्ट डाले। थैंक यू। So obviously, ODI debut first step 2015 versus Zimbabwe and a test debut 21st Jan 2016 versus Pakistan. So now the next show, I request you, Mr. Fatahjit Nehri sir, that you come for the speech. Well, good afternoon, everybody. Thanks for joining us in this moment. So we'd like to know for all of us that a very nice academy will be starting soon. The main thing, I'm an assistant director, I look after the coaching. So I would like to tell us a few things about our way of coaching and why we are doing it actually. The main thing is that, look, very important is that young people should get the best coaching in the grassroots. It doesn't happen anywhere, probably in India as well. The best coaches, the best umpires, the best ground, the best facility, best logistics should be given to the young cricketers. The main problem is we get good facilities when you are playing for India or you are playing for Ranji Trophy. Our motto is to contribute to the grassroots. I was with NCA for 5-6 years, and also I was a coach education faculty for a long time. The best facility of what we are doing is we are giving the facilities what we gave in the national level, under 16 national camp, under 19 national camp, 20 national camp, part of all these. So whatever I learned, we are trying to put it in the grassroots. That is the most important thing. Our USP of MS Dhoni Cricket Academy. Standard of coaches, all qualified coaches. They have to be a level 1 or level 2, or we also run coach education courses as well. They also, even person who has done level 1 from any institute, they have to go through our level 1, because our way of coaching is much different. And I hope when we start coaching people in Jaipur will understand it, see it, and hopefully that we can contribute a lot to Jaipur, and from Jaipur probably we produce a lot of cricketers will in future play for India, and obviously for Rajasthan first. And the last point which I want to tell is the quality control. That is very important. It is not that we are opening a lot of academies, there is no quality in it. Being a level C coach myself is one more. Level C Manda Dalvi is there, he is also a level C coach. We travel a lot, and
visit all the academies. And lastly, I want to thank Mihir Divakar, MD of our company, for his vision. And to be honest, we talk he's not coaching, but we learn a lot from him and from his experience, past experience, the way forward. And as a whole team, we are working together and going towards a common goal. Thank you so much. Right, thank you everybody. So now the next childhood friend of MS Dhoni, Mr. Mihir Divakar. Please come on, clap your hands. Thank you for your kind words, Darren, Karthi. Thank you, and good afternoon everyone, and thank you for coming and spending time. और आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है और हम लोग बहुत डिलाइटेड और एक्साइटेड भी हैं कि यहाँ पे जयपुर में काफी समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे, बट 7-8 महीने से तो पैंडेमिक ही चल रहा है, इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। अजय, अरविंद एंड आगा जी इन्होंने काफी मेहनत की है और अजय मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, मैं उनको 30 साल से जानता हूँ। जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी 11-12 साल के थे, साथ ही खेलते थे क्रिकेट हम लोग, बट अब नाउ ही इज इन जयपुर। और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनकी बैक टीम है और जो लोग एफर्ट कर रहे हैं। दीपक है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा कि कंपनी और एकेडमी कैसे चलती है। सॉरी दैट आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। तो मैं ओनिल को बोलूंगा, ओनिल प्लीज अगर इफ यू स्टार्ट शेयरिंग द पीपीटी सो आई कैन टेक यू। बेसिकली ये एकेडमी स्टार्ट करने का काफी टाइम समय चल रहा था, मेरे ख्याल से 2012 से बात चल रही थी, बट फाइनली 2014 में जब एमएस सर्विस से रिटायर हुए देन ठीक है मेरे पास टाइम है, कैन स्टार्ट क्रिकेट एकेडमी। तो लेकिन 2014 में उन्होंने बोला कि 2014 में स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ हमारा 2016। 2 साल हमने टाइम लिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हमने पायलट प्रोजेक्ट भी किए अलग एकेडमी, अलग नाम से एकेडमी, ताकि मुझे क्रिकेट खेलना और एकेडमी चलाना और कोचिंग करना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। जब हम लोग 10-15 साल क्रिकेट खेले तो 2 साल में जो हमने पायलट प्रोजेक्ट किया, उसके बाद 2016 में हमने MS धोनी क्रिकेट एकेडमी लॉन्च की। और आज के समय में हमारी एक्सटेंडेड फैमिली अराउंड 500 लोगों की है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू दादा का जो एफर्ट है, क्योंकि कोचेस जितने भी हैं और जितने क्वालिफाइड हो जाए, आज के समय में हमारे पास 500 लोग ऐसे हैं जो हमसे लेवल 1 कोचिंग सर्टिफिकेशन ले चुके हैं। और इंटरनल टीम है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है कि नई चीजें क्या है, अपडेट एंड अपग्रेडेशन लगातार हमारा चलता रहता है। इसके साथ अभी हमारा जो करंट स्टेटस है कि 6-8 महीने से सारी एकेडमी बंद है और आज के समय में हम 40+ सिटीज में अवेलेबल है। और ये पैंडेमिक के बाद पहला एकेडमी स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके मार्च तक हमारे 40 से 50 एकेडमी ऑपरेशनल हो जाएंगे डिफरेंट पार्ट सिटीज में। इसके साथ और भी चीजें कैसे कि क्रिकेट एकेडमी, जैसे हम लोग बहुत बचपन में दिल्ली आ गए थे, दिल्ली में क्रिकेट सीखने आ गए थे। अब हमारा पर्पस ये है कि छोटे शहर के लोग बड़े शहर में आ जाए, अच्छे कोचेज छोटे शहर में भी आए और इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे शहर में भी बने। कि आज आप लोग तो क्रिकेट जानते ही होंगे कि एक समय में ये क्रिकेट बड़े शहरों की का गेम होता था, जहां मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई के लोग खेलते थे। लेकिन अब पिछला 20 साल 15 साल में एक चीज तो इंडियन क्रिकेट बदल गया है कि जो टैलेंटेड भले गांव का हो चाहे शहर का हो, उसको खेलने का मौका मिलता है। कोई शहर का गेम नहीं रह गया, ये देश का गेम बन गया। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि MSD का है कि उन्होंने जो जिस तरह से क्रिकेट लेके आगे लीड किया है और टैलेंट को उन्होंने प्रमोट किया है, तो छोटे छोटे शहरों से भी लोग इंडिया रिप्रेजेंट किया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग का थॉट था कि क्रिकेट एकेडमी, जो चीजें हम छोटे शहर में हमें नहीं मिल पाती है, कोचेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाते हैं, तो छोटे शहर के लोग बड़े शहर में ना आए, हम लोग छोटे शहर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग स्ट्रक्चर लेके आएंगे और वहां से हम टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसको प्रमोट करके हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल हो और करियर एज ए करियर वो इसको ऑप्ट करें। साथ में क्या है कि हमारा एक ये भी पर्पस है कि जो लोग
रिटायर्ड हैं, जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, उनको हम हमारे साथ जुड़ के हम उनको ट्रेन करके उनको जॉब प्रोवाइड करें, ताकि ओवरऑल कोचेस, प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स और सबको इससे बेनिफिटेड हो। और इसके अलावा हम लोग अभी एक नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा जून में एक MS धोनी ग्लोबल स्कूल भी आ रहा है, जो कि बैंगलोर में आपको वीडियो भी दिखाया जाएगा। और वो ग्लोबल स्कूल CBSE प्रॉपर स्कूल होगा, और हम लोग अभी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक बच्चा हमारे पास KG to PG वाला जो फंडा है, कि एक बच्चा हमारे पास आता है, अगर KG में है तो PG करके और जॉब भी हम देंगे, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही हो। और इससे क्या होगा कि लोगों को थोड़ा स्पोर्ट्स पे कॉन्फिडेंस आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि स्पोर्ट्स थोड़ा सा रिस्की लोग मानते हैं कि अगर खेल नहीं, क्योंकि 140 करोड़ में 15 लोग इंडिया के लिए खेलते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन वही रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ये पहल कर रहे हैं कि अगर इंडिया हम नहीं भी खेले, अगर IPL नहीं भी खेले, अगर अच्छा प्लेयर है, तो आपको आफ्टर क्रिकेट आपको जॉब, आपकी सिक्योरिटी, आपकी लाइफ सिक्योर करना हमारा पर्पस है। तो इन सब चीजों को लेके हम जयपुर आए हैं, और जयपुर में आने का ये है कि जयपुर से काफी साल से जुड़ाव है। हम लोग बहुत बार मैच खेलने के यहाँ पे आए हैं, सवाई मानसिंह में हमारा मैच भी होता था। और राजस्थान में टैलेंट बहुत है, और हम यहाँ पे आए हैं कि वो टैलेंट आइडेंटिफाई करें और उनको राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए विद द हेल्प ऑफ ऑल द एक्सपर्ट कोचेस, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, with the help of local people, जो हमारे लोकल मैनेजमेंट है, और उन लोगों को प्लेटफॉर्म देके वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनाने की कोशिश है। तो ये सब थॉट के हम अब यहाँ पे आए हैं, और थैंक यू वेरी मच आप लोग ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। Right, I'll request to the range, Mr. Ajay Bora sir, that you come for the speech. नमस्कार, मैं मिस्टर मेहर की उम्र वक्त का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मैं दीपक और अमित के कहने पे एक बार सपोर्ट किया, हम लोगों को मेंटली सपोर्ट किया कि आप करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। धन्यवाद देना चाहता है मिस्टर मेहर और MSDCA पूरी टीम। So I request you, Mr. Arvind Konwal sir. आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है, और धन्यवाद देना चाहूँगा मीर भैया को, जिन्होंने आज इतनी बड़ी सौगात राजस्थान को दी। यहाँ मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी खिलाड़ी जो यहाँ छोटे गाँव में और शहरों में जो छुपी हुई प्रतिभा है, वो लोग आए, अच्छे प्रशिक्षण लें और देश के राजस्थान का नाम रोशन करें। So I request Arvind again, Mr. Deepak sir. एक बार आए, प्लीज बोलो for this. Yes. थैंक यू मीदा, बैकएंड का आपने ध्यान रखा, और मैं बैकएंड की ओर से मेरी टीम यहाँ खड़ी है, हम लोग सब यहाँ खड़े हैं। धीरज जी यहाँ है, धीरज जी थोड़ा, संजय जी है, और बहुत हमारे वीर साहब बैठे हैं पीछे। मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे पूरी आपका स्पोर्ट्स की टीम को, MSDCA की टीम को, कि हम हमारा पूरा अथक प्रयास करेंगे कि हम राजस्थान में जितना ज्यादा टैलेंट को निकाल के आगे लाने की हम कोशिश कर सकते हैं, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। और AD स्पोर्ट्स जो राजस्थान में MSDCA के साथ मेहर भाई के सहयोग से जो कार्य कर रहे हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं पूरे राजस्थान लेवल पे, और भी काफी एकेडमीज और जो भी हम और इनिशिएटिव्स ले सकते हैं वो लेंगे। धन्यवाद। मेहर भाई कुछ बात अभी एक चीज मैं भूल गया बोलना कि 3 और एकेडमी हमारे आ रहे हैं राजस्थान में, सीकर, कोटा और उदयपुर। So we are coming with 3 more academies along with Jaipur. Thank you. I was not expecting that. चलिए, that's good. नाम शहरों के आप लोग के सामने आ गए, और तो हम लोग सोच रहे थे कि ये थोड़े दिन बाद ही बताएं,
But very good. Thank you very much, and thank you very much, Daryl, for traveling all the way from South Africa to attend this event. Thank you very much, RP Singh sir. आपने समय दिया और ड्राइव करके आप आए. It was a difficult and it is a pleasure to host Daryl and RP Singh ji here in Jaipur. And thank you very much, everyone. Thank you, Uttam ji. Thank you, Satyajit sir. And I would now request media for any questions and answers. I hope. Thank you very much. लाइट ऑन करवा दो. मैं तो ये जानना चाहेंगे कि दरअसल कोई भी क्रिकेटर हो या उसके पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि आर्थिक जो स्थिति होती है, टैलेंट तो होता है लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है और परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता, उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता. खासतौर पे छोटे शहरों में ये ज्यादा देखने को मिलता है. तो जो आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसका फी का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, आर्थिक बोझ कितना आएगा उन यंगस्टर्स पे जो चाहते हैं कि उनका भविष्य खेल के अंदर. इसमें ऑब्वियसली फीस तो रहेगी, क्योंकि फीस क्योंकि वो चीजें सिस्टम है, सिस्टम कॉस्ट है. आपको फीस नहीं रहेगा तो फिर क्वालिटी आपका नीचे चला जाता है, क्योंकि कोचेज हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं. लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता रहा हूँ कि अगर जो हम एक टैलेंट हंट भी हम अभी कंडक्ट करेंगे, एक बार चीजें थोड़ी सी खुल जाएंगी, पैंडेमिक का टाइम है, तो जो बच्चा टैलेंटेड है और जो पैसा नहीं दे सकता है, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे जिनको पूरी साल फ्री में कोचिंग करेंगे. और ये हमारे पूरे अकेडमीज में है कि 5% से 10% बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग लेते हैं. लेकिन उसका एक ही क्राइटेरिया है कि वो टैलेंटेड बच्चा होना चाहिए. पैसा बात की बात है कि हमको प्लेयर रखना. हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है कि प्लेयर निकले और टैलेंटेड बच्चा. वैसे पैसा कोई बैरियर नहीं है आपको क्रिकेट सीखने के लिए. हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि उन बच्चों को भी हम प्रमोट करेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन वो टैलेंटेड है और उनका फ्यूचर बन सकता है. My question is for RP Singh. How did you get associated with MS Dhoni as far as academy is concerned, and what exactly will be your role? So बहुत सारे एकेडमी में जो हम लोग समर क्लासेस कह लो आप या विंटर क्लासेस जो बंच बनाते हैं अच्छे प्लेयर्स का, कि आपने एक स्टेट से 4-5 एकेडमी रन करके जो आपने उसमें एलीट क्लास के 5 बॉलर्स निकाली, उनका बंच बनाया, उसको ट्रेन करने के लिए जो कैंप्स लगाते हैं उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा. अभी जो बात करें स्कॉलरशिप की और क्रिकेट अकेडमी, हमारे 50 क्रिकेट अकेडमी है, तो फिजिकली आरपी के लिए, डेरिल के लिए और एमएस के लिए पॉसिबल नहीं है हर जगह जाना, क्योंकि और भी कमिटमेंट्स होते हैं. तो इनसे जो टैलेंटेड बच्चे होंगे, जो फास्ट बॉलर्स होंगे, उनको एक जगह बुलाएंगे. वो आरपी सिंह उसको मास्टर क्लास के रूप में उनको गाइड करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे. आरपी आप बीसीसीआई की सीआईसी में भी हो तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है. सीईसी मेंबर्स का हमारे मीटिंग का रिलेटेड डिपेंड रहता है और उसका काम ऐसा पूरे महीने काम नहीं. बाकी क्रिकेट का खेला हुआ आदमी क्रिकेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, तो कोचिंग तो उसमें एक बड़ा है जो सीखे और सिखाने के लिए ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं है. हेलो मिहिर सर, ये जरा सा इधर ये अभी आपने फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, उसके बारे में जरा सा बताएंगे कितना तक फीस हो सकती है? ये तो मेरे ख्याल से डागा जी बेटर इसको बताएंगे. देखिए 7,670 रुपीज which is inclusive of GST 18% is our admission fees. Admission is वापस बोलिए. 7,670. बट इसमें सारा का सारा अमाउंट अगर आप एडमिशन फीस के समझो किट देखेंगे तो यू विल सी कि वो सारा का सारा पैसा किट में जा रहा है. किट इन द सेंस ड्रेसेस, वाइट ड्रेस आ रही है, शॉर्ट्स आ रहे हैं, ट्रैक सूट आ रहा है एंड एकेडमी की ड्रेस आ रही है, डफल बैग आ रहा है, कैप आ रही है. तो वो अमाउंट तो जीरो है. इट इज जस्ट द नेम ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस. ये सब इसमें दिया जाएगा? ये बिल्कुल दिया जाएगा. तो ये तो जीरो पैसा है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट मंथली फीस पे. मंथली फीस इज 3,000 प्लस 540 इज 18% GST. So that becomes 3,540.
अब इसमें अपन प्रैक्टिस मैचेस के कोई पैसे नहीं लेंगे बच्चों से, विच इन इटसेल्फ अगर आप देखेंगे तो 5-7 मैच के बच्चों के मतलब प्रैक्टिस मैचेस के इतने पैसे लग जाते हैं, विच आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। अगर मोरलेस अगर आपने जो क्वेश्चन किया था कि आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं, तो बच्चों को ऑलमोस्ट 0 पे चल रही है। थैंक यू। दादा जी, आपकी एकेडमी बहुत सुंदर बनाई है आपने, एक फ्लड लाइट की उसमें कमी नजर आ रही है। बिल्कुल जी, पाइपलाइन है, अनदर 2-3 महीने में आपको दिख जाएगी। अगर ये शायद लॉकडाउन वाला या कोविड का पीरियड नहीं होता तो मीनवाइल अभी सब चीजें होंगी। ये एकेडमी जयपुर में चल रही करीब 50 एकेडमियों से अलग कैसे होगी, क्या डिफरेंस होगा इसमें? अलग तो वैसे ही होगी, एमएसबीसी होगी, मतलब नाम से अलग होगी, सिर्फ नाम से नहीं, कुछ काम भी होगा ना। ऑनेस्टली एक चीज बताता हूँ, शायद आपको मेरे बारे में पता भी होगा। पता है सर। अगर इस नाम के अलावा मेरे पास में कोई दूसरा नाम आता तो माने चाहे नहीं माने, मैं नहीं ज्वाइन करने की सोच, क्योंकि ये नाम इतना बड़ा है, क्योंकि नाम नहीं है, उस आदमी ने काम किया एंड वो काम अभी तक कर रहा है। उसने आर्मी को भी पकड़ा है, उसने किसानों को भी पकड़ा है। आई डोंट थिंक, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक हिम एंड इट इज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी एसोसिएटेड अंडर दिस नेम। नील साहब, यस, एकेडमी के बारे में जो बात हो रहा था कि व्हाई इज डिफरेंट इज पहले जब एडमिशन लेने के बाद हमारा पहला काम होता है कि उसका वो कौन जगह पे है, वी हैव फाइंड आउट वेदर ही इज इन अ बिगिनर स्टेज और द ट्रांजिशन स्टेज और प्रैक्टिस स्टेज और एडवांस स्टेज, व्हाटएवर कैसे करना है। वी डू अ वीडियो एनालिसिस एंड आल्सो पिच विजन इज आल्सो देयर एंड फाइंड आउट कि उनका किस पोजीशन में है। हम एबिलिटी का हिसाब से ग्रुप बनाते हैं। इट्स नॉट कि अगर कोई 18 इट मे बी 16 साल का बच्चा भी बिगिनर हो सकता है। So it's different actually. We go आप देखोगे under 16, under 19, under 12, under 11 ऐसा होता है. But we go by these 4 stages. One is the beginner stage, second is the practice stage, intermediate stage and the advanced stage. ये हो गया आपका स्किल का बारे में हम बताएं कि क्या करना है। Second is that physical fitness. We screen, we do a NS test, उसको musculoskeletal test बोलते हैं। उसका बाद we find out कि उसका मसल का कौन सा वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस है कि नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस ऑफ मसल्स। जैसे कि बाइसेप और ट्राइसेप एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक साइड वीक है तो दूसरा इंजरी होने के चांसेस है। सो इट शुड बी बैलेंस। वी फाइंड आउट एंड देन आवर ट्रेनर विल ट्रेन देम एंड मेक देम फिजिकली फिट। You have to be fit to play cricket. You cannot be you cannot play cricket to be fit. Absolutely. बच्चे लोग आते हैं, most of the people लोग आते हैं कि पेरेंट्स क्या खेलने में है, they want to play cricket, they want to be fit. So our concept is different. You become fit कि RPG इधर पे है, he knows. अगर कोई भी बच्चा young age में bowling करने के लिए आ रहा है and he is not physically fit in the sense weak muscles है या overweight है, there is a high chance there will be injury. We will not allow him to do full run up and bowl. We first make them fit and then do the drills. आस्ते आस्ते we go for run up. ये मैं एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। और एक है कि मेंटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं मेंटल जो एक्सरसाइजेज है वो क्या होता है, जब वो टेस्ट करता है कि इंडिया 19 खेला तभी उसको बोला जाता है ये एक्सरसाइज लाइक अरेजल कंट्रोल which is called IPS. We have to be up. सुनेंगे zone, the commentators say that this fellow is in zone, मतलब कि he is in a IPS, ideal performance state. वो that's for arousal level. तो उसको कैसे उस level पे लेके जाना है? There are so many exercises are there. If we do it in the grassroots, definitely it will be in the system. So these are small things, but very we call it 1% factor, and 1% factor makes a difference between a champion or a competitor. Thank you. तो सर ये to one out with it here, Ayusha this side. Sir, my question is with Mihir sir. Sir, अगर इंडियन क्रिकेट एकेडमी की बात करें तो यहाँ के युवाओं की आपकी मतलब क्या स्ट्रैटेजी होगी, डिफरेंट क्या होगा
किस तरह से उनको तैयार किया जाएगा कि वो इंडियन क्रिकेट एकेडमी मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के लिए शामिल हो, वहाँ पे वो खेल सके? हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमारा बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली हम लोग प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं इसमें टैलेंट है। दो तरह के प्लेयर्स आते हैं, एक प्लेयर्स आते हैं जिनको खेलने का शौक है और एक आते हैं जिनके पास एक्चुअल टैलेंट है। तो हमारा ये जो टायर 2, टायर 3 सिटी, टायर 1 सिटी में जाने का पर्पस है कि टैलेंट हमको यहीं से मिलता है। पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको एक सेपरेट प्रोग्राम में डालते हैं, सेपरेट प्रोग्राम के उनका प्रोग्रेस चार्ट बनाते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर उनको हम लेके जाते हैं। इंडिया खेलना तो वो तो एक अलग बात होता है क्योंकि उसके बाद आप स्टेट में आते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, फिर स्टेट की बात करेंगे, आईपीएल की बात करेंगे, तो इंडियन टीम तो लास्ट स्टेज है। बट हम ये कोशिश करेंगे कि हम उस प्लेयर को उस लायक बना दें कि किसी भी स्टेज पे वो जाके परफॉर्म कर सके और बेहतर परफॉर्म कर सके और बाकी प्लेयरों में और हमारे प्लेयर्स में डिफरेंस दिखे। ओके, थैंक यू सर। बट लाइक एमएस धोनी क्रिकेट एकेडमी नाम है, तो कोई भी अगर बच्चा इसमें युवा कोई भी पार्टिसिपेट करता है तो उसको तो ये होगा कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले। जी बिल्कुल, जो भी बच्चा खेलने आता है, इवन हम लोग जब क्रिकेट स्टार्ट किए थे तो हमारा एक ही गोल होता था कि इंडिया खेलना है और सारे बच्चों को होना भी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका एफर्ट अलग हो जाता है। अगर इंडिया खेलना, हम उनको रास्ता बताएंगे, हम उनको डायरेक्शंस बताएंगे और उनको उसी तरह के प्रोग्राम में डालेंगे कि आपको कैसे इंडियन खेलना, सोचना और एक्चुअल में खेलना बहुत अलग अलग चीजें होती है, बहुत सारी कंपोनेंट होती है। तो अभी एमएस धोनी का आप देख रहे होंगे, रिजल्ट पे मत जाओ, रिजल्ट इंडियन टीम में जाना, प्रोसेस क्या है। हम लोग का पूरा पर्पस है कि प्रोसेस पे फोकस करना। अगर आज मेरा अच्छा होगा तो फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। हम आज अच्छा बनाने जा रहे हैं, कल तो अपने आप अच्छा होगा। सर, इनकी एजुकेशन के बारे में क्या करेंगे? जैसे कोई अगर एकेडमी में एडमिशन लेता है और वो रेजिडेंशियल एकेडमी है, तो उनकी एजुकेशन के बारे में क्या प्लान होगा? जी, हम लोकल स्कूल से टाइप करेंगे जो भी आसपास है। तो और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्पोर्ट्स की बात करें तो बिना एजुकेशन का स्पोर्ट्स में हम अलाउ भी नहीं करेंगे। जो लड़का पढ़ता नहीं है हम खिलाते भी नहीं उसको। और हम बहुत सारे ऐसे एकेडमीज में, अगर आज आपका 70-80% मार्क्स आ रहा है, मेरा एकेडमी ज्वाइन करने के बाद 60% आया तो उसको हम लोग बोलते हैं नहीं, आपको खेल नहीं सकते। आपका एजुकेशन से वी कैन नॉट कंप्रोमाइज विद एजुकेशन, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और क्योंकि एक समय के बाद एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है। और हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट क्रिकेटर, तो स्मार्ट क्रिकेट के लिए आपको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हम लोग लोकल स्कूल से टाइप करेंगे। इवन आज के समय में तो ऑनलाइन चीजें भी आ गई हैं, आपको स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। क्या कोई ग्लोबल स्कूल जयपुर में खोलने का प्लान नहीं है? बिल्कुल है सर, अभी तो ये प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 साल में हमारे 10 से 15 स्कूल आएंगे, तो हम बात कर रहे हैं और जैसे फाइनल होगा डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू। Are there any plans to also utilize the expertise of cricketers from Rajasthan? डेफिनेटली, क्या हम लोग, हमारा पर्पस है कि जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग करेंगे। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और इवन हमारे पैनल में भी हैं। यहाँ पे एक कोच है पी कृष्ण कुमार है जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि हमारे साथ जो ऑनलाइन हम लोग पैंडेमिक में क्या था कि क्रिकेट बंद हो गया था, कोई कोचिंग नहीं होता, लेकिन हम लोग कांस्टेंट टच पे थे बच्चों को, ऑनलाइन में हम ट्रेनिंग करा रहे थे। इवन घर में है, घर में भी आप फिटनेस कर सकते हैं। तो पी कृष्ण कुमार और भी बहुत सारे लोग हमसे एसोसिएटेड हैं। और दूसरी चीज है कि हम लोकल कोच भी बनाएंगे, हम यहाँ आके कोच एजुकेशन करेंगे और उनको एम्पावर करेंगे। और जो पहले बात चली थी एम्प्लॉयमेंट की, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो इंटरेस्टेड है कोचिंग के लिए, उनको हम कोचिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेशन कराएंगे, फिर हम अपने एकेडमी में इन्वॉल्व करेंगे। आरपी जी, इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा पूछना था। आप फास्ट बॉलर रहे हो, तो हमारी बॉलिंग यूनिट कुछ कमजोर पड़ रही है क्या? जैसे गंभीर ने भी कल कहा कि बुमराह को सिर्फ 2 ही ओवर कराए शुरू में। आप एक तो मैच देख के चीजें डिसाइड नहीं कर सकते और एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है कोविड का, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ प्रैक्टिस से जो हमारे नेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपको सर्टेन टाइम के लिए रूम में रहना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें। और रही बात बॉलिंग डिपार्टमेंट की इंडियन टीम की, आपके पास मोहम्मद शामी है और जसप्रीत बुमराह है और दोनों पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि ये दोनों गेंदबाज ऐसे जो वर्ल्ड के टॉप 3 या टॉप 4 गेंदबाज रहेंगे। साथ में यूजी है और उसके बाद हमारी बेंच है वो भी अच्छी है, जिसमें नवदीप सैनी है। तो ऐसा कोई सिर्फ कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा है। तो हमारा एक क्लिक होता है कि क्लिक आपने बेटर किया और मैच जीत गया। अभी हम लंबा ट्रेवल करके गए हैं, उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए हम लोग अपने साइड की बात करते हैं। पर टाइम ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे, बट आई एम श्योर कि उसको अपना रेक्टिफाई कर लिया होगा टीम ने और जल्दी जीत देखने को मिलेगी। So one more thing. Do you think that
I feel performance in the IPL creates a false illusion because when it comes to international cricket, the standards are pretty different. So that's why we can clearly see the Indian players aren't performing well there, but they did pretty well when it came to IPL. So what do you have to say on that? सो फॉल्स इल्यूजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो एक हमारा पैरामीटर हो सकता है टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक आफ्टर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑल्सो कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट में किस तरह के लोग परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप जब आप T20 फॉर्मेट से आप वनडे फॉर्मेट जाते हैं तो बहुत डिफरेंस आ जाता है आपका, और यू राइट जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको वीक लिंक नहीं मिलते हैं पूरे टीम में, तो आपको 100% एकदम अप टू द मार्क रहना और सारी प्लेइंग 11 या सब कुछ ठीक रखना होगा कि आप 5 बॉल है सारा कैलकुलेट होना चाहिए। और आईपीएल पे वो कई बार देखने को मिलता है कि आपके पास बिकॉज ऑफ बैलेंस और बिकॉज ऑफ द रूल्स कि आपको 4 फॉर्मेट लाने कि कुछ टीमों में कई बार ऐसा होता है कि आपको 1 या 2 विकेट मिल जाते हैं। और भी विराट कोहली की एक्शंस पे फर्क पड़ेगा टेस्ट में? सर थोड़ा सा ये टॉपिक डाइवर्टिंग थोड़ा सा बात नहीं 1-2 क्वेश्चन फाइन, बट थोड़ा सा क्रिकेट दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो एट प्रेजेंट इज द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर, और वो नहीं रहेगा तो हमसे थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, पर उसके गैप कैसे फिल करेंगे वो टीम मैनेजमेंट से डिसाइड, अगर रवि भाई हैं वो डिसाइड करेंगे वो गैप कैसे फिल करेंगे। सो मेरा अपना मानना है कि उसके जाने से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। मेर सर एक्सक्यूज मी सर, आपने केजी टू पीजी के लिए बताया अभी थोड़ा पहले, इसको थोड़ा सा और खुल के बताओ केजी टू पीजी में मतलब क्या आपका प्लानिंग्स रहेगी बच्चे के लिए? जी केजी टू पीजी मतलब स्कूल नर्सरी से चालू हो रहा है, हमारे क्रिकेट अकेडमी है, इसके बाद हम हायर एजुकेशन में आ रहे हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्कूल चालू है, इसके बाद हायर एजुकेशन में भी गया है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टार्ट होने वाला है रिसेंटली, क्योंकि अभी कोविड में थोड़ा सा चला है। तो हमारे पास जो बच्चा अगर स्कूल में आता है, स्कूल से निकलेगा तो वो सीधा जॉब पे जाएगा। अगर कोई प्लेयर इंडिया खेल रहा है चाहे ऑफ लेवल में प्रोफेशनली करियर ले लिया तो वो अलग बात है, अदरवाइज अगर क्रिकेट में सक्सेस नहीं भी हुआ तो वो सीधा उसको हम प्लेसमेंट करेंगे। अभी हम स्कूल की बात करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे चीजें होंगी, लेकिन ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा अगला 5 साल 10 साल का विजन है कि हम केजी टू पीजी की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हम लोग फाइनली सन सिटी के पास में है, और हमारे लोकल पार्टनर डबल एडी स्पोर्ट्स है जो हमारा पूरा राजस्थान का हमारे पार्टनर है। और यहाँ से अच्छे बच्चे इंडिया और राजस्थान में इस जयपुर के साथ अकेडमी खुले तो जल्दी वहाँ पे
काम स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश हमारा है कि हम बच्चों तक पहुँचे सोसाइटी में, और बच्चों को यहाँ आना ना पड़े हमारे पास, हम बच्चों तक पहुँचे। MS धोनी का बहुत बहुत है, अभी तो उनके पास टाइम है, बीच में अभी और वो कॉन्स्टेंटली टच में होते हैं और पूछते रहते हैं। और ये जो कोचिंग प्रोग्राम है उनमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो लीडरशिप की बात है, मेंटल चीज़ों की बात है और कोचिंग की बात है, तो वो सारा उनके गाइडेंस है। इस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो रूम पकड़ा जी मार लो। कमल जी मेरा भी उठा देना जरा। नहीं वो कटवा लिया था पहले ही। कमल जी मेरा भी उठा दो जरा। सो आज के सवाल में जवाब नहीं खत्म होते हैं और सीधे हम मिलते हैं आपसे क्रिकेट एकेडमी में MSD